chief guest of today, Satyanshu Singh sir, Dean Academics Dr. Manmohan Gupta sir. Welcome you all sir. As you know that university has included Rashtrabodh as a mandatory subject to inculcate the moral values in the youth of today. We have a very prestigious personality with us, Mr. Satyanshu Singh. He is a national award-winning filmmaker, screenwriter and cinema educator, best known for his Netflix series Black Warrant. After completing his MBBS education from Armed Forces Medical College, AFMC Pune, Satyanshu started his life in Mumbai as a filmmaker, where his first project was writing poetry for the Cannes premiered film Udaan 2010, that is 2010, directed by Vikramaditya Motwani and produced by Anurag Kashyap. Partnering with his brother Devyanshu, Satyanshu sir went on to write and direct the national award-winning Kashmiri language short film Tamash and their feature film debut Chintu Ka Birthday 2019, that is 2019. Satyanshu later directed the drama series Jahanabad 2023 on Sony Live. Meanwhile, Satyanshu built a parallel career as an educator in screenwriting and filmmaking. He wrote the acclaimed screenwriting book Idea Se Parde Tak, published by Rajkamal Prakashan, and continued to contribute globally as a consultant and mentor on projects from Germany, the Netherlands, Thailand, and Philippines. Satyanshu sir's latest work is the Netflix series Black Warrant 2025, which was named among Variety's top 10 series of the year worldwide. He worked as a co-creator and co-showrunner on the series, in addition to being its lead writer and one of the directors. He has received multiple awards for the series, including Filmfare Awards for Best Adapted Screenplay and Best Direction. We are glad to have you, sir, with us. Can we have a big round of applause? Now, I would like to call upon stage our Honorable Vice Chancellor, Dr. Himanshu Aryan, sir, to please come forward and felicitate our Honorable Chief Guest, Satyanshu, sir. And Tiwari, sir, please can we have forward, and Dean Academics, Dr. Manmohan Gupta, sir. Now, I would like to call upon our chief guest of today, Mr. Satyanshu Singh, to please come and present his views. Can we have you, sir? Good afternoon. यहाँ पर फिल्मों का शौक़ कितने लोगों को है? हाथ उठाइए। आई होप फिल्मों का शौक़ बहुत लोगों को हो, मेरी रोज़ी रोटी वहीं से आती है। मुझे जिस टॉपिक पर बात करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है, थैंक यू VC sir and Subharti family, all the faculty who decided to have me here, and everyone present, all the students, thank you for having me. मुझे जिस टॉपिक पर बात करने के लिए बुलाया गया है वो है सक्सेस क्या है और व्हाट आर द डिमेंशंस ऑफ सक्सेस, और हम अपनी ज़िंदगी में इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं शुरू में आपको ये ज़रूर बता दूं कि मैं पर्सनली सक्सेस को चेज़ नहीं कर रहा हूँ। मुझे अब, एंड आई होप जब तक मैं वापस वहाँ बैठूँगा आपको समझ में आ जाएगा क्यों। एक्चुअली सक्सेस को समझना थोड़ा मुश्किल है। ये एक पैराडॉक्स है कि हम दुनिया में लगभग हर इंसान एक सक्सेस के कॉन्सेप्ट को चेज़ कर रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं कि सक्सेस एक्चुअली क्या है। अगर हम बोलेंगे कि डिफ़ाइन करो कि तुम एक्चुअली क्या व्हाट यू मीन बाय सक्सेस, तो लोगों को बहुत अच्छे से पता नहीं है, लेकिन सबने कहा है तो सब कर रहे हैं। उसको समझने के लिए मैं पहले आपको कुछ अपनी ज़िंदगी से कुछ कहानियाँ सुनाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने क्या ज़िंदगी देखी है, और मैं जिस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, व्हाट इज़ द बेसिस बिहाइंड दैट बिलीफ। ओके, सो आप में से कई लोगों को फिल्मों का शौक़ हो सकता है, कहानियों का शौक़ हो सकता है, किसी को म्यूज़िक का शौक़ होगा,
कुछ होंगे जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा। ऐसे बहुत सारे पैशंस हैं जो वाइल ग्रोइंग अप मैनी ऑफ अस इनकलकेट। लेकिन जो कन्वेंशनल वर्ल्ड है करियर का और अचीवमेंट्स का, उस वर्ल्ड में उस तरह के पैशंस की उतनी जगह नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल करियर परस्यू कर रहे हैं और साथ में आप बहुत अच्छा गाते हैं तो आपको काफ़ी तारीफ मिलती है हर जगह। लेकिन अगर आप सिर्फ अच्छा गाते हैं और आप प्रोफेशनल करियर कोई परस्यू नहीं कर रहे हैं तो जो हमारा समाज है या हमारे घर वाले हैं वो हमें एक नज़र से देखते हैं कि ये नालायक है या फिर इसको पता नहीं करना क्या है, राइट। सो हम में से कई लोग इस बात को समझते हैं, या तो इधर इट्स यू बिलीव इन सम ड्रीम, आप किसी चीज़ को पसंद करते हो लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है करियर कैसे बनाना है, और यू नो समवन, आपका कोई फैमिली में कोई है या कोई फ्रेंड है, या there are people who are full of passion and artistic pursuits but who don't know how to convert this into a conventional idea of success। मैं एक बिहार के छोटे से शहर में पला बढ़ा जहाँ पर फिल्म बनाने का सपना देखना ही बहुत बड़ी बात है। वो सपना देखना ही एक तरह का की फैंटेसी है कि आप हाउ कैन यू ड्रीम टू बी अ फिल्म मेकर। MBBS की पढ़ाई की, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में सुना, मैंने MBBS की पढ़ाई की फ्रॉम आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। वो इंडिया के वन ऑफ द अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में से आता है। और थैंक यू। लेकिन उस कॉलेज, वो जो कॉलेज है मेडिकल कॉलेज, वो आर्म फोर्सेस का है। तो उससे दो चीज़ें होती हैं, एक आपका एजुकेशन प्रैक्टिकली फ्री है, आपको पढ़ाई पर खर्चा नहीं करना पड़ता। तो आपके घर पे आपके माँ बाप सब बड़े खुश हैं कि आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में बहुत अच्छा एजुकेशन ले रहे हो, लेकिन वहाँ पर आपको पैसे नहीं देने, और आपको MBBS करने के बाद जॉब की गारंटी है, वो आपसे कोई नहीं ले सकता। आप फौज में एक मेडिकल ऑफिसर बनोगे, फिर आप लेफ्टिनेंट, मेजर, कर्नल, ऐसे आप प्रमोशंस होंगे और आपका पूरा करियर सेट है। लेकिन अगर आपको वो नहीं करना, आफ्टर MBBS अगर आपको फौज में नहीं ज्वाइन करना है तो आपको 15 लाख रुपए, हमारे ज़माने में होता था 15 लाख रुपए देकर अपने जॉब को छोड़ना है। ओके। मैं जब कॉलेज में था तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे MBBS करने के बाद और डॉक्टरी को परस्यू नहीं करना है, मुझे फिल्म मेकर बनना है। तो मैंने अपने घर पे बताया कि मैं डॉक्टरी छोड़ना चाहता हूँ, फौज छोड़ना चाहता हूँ, बम्बई जाना चाहता हूँ और फिल्में बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो घर पे ही ये बहुत बड़ी बात है। यू कैन इमेजिन कि अगर मम्मी पापा को ये कोई बता दे, 24 साल का लड़का, कि मुझे तो नहीं करना ये, तो कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन उसके साथ जो 15 लाख रुपए देने हैं आपको नौकरी छोड़ने के लिए, वो पैसे आप कहाँ से लाओगे? क्योंकि मेरे घर का जो फाइनेंशियल सिचुएशन था बहुत अच्छा नहीं था। तो 15 लाख रुपया बहुत ज़्यादा अमाउंट था, और ये आज से 17 साल पहले की बात है। फिर भी मैंने अपने घर से एक तरीके से, बगावत बहुत बड़ा शब्द है, मगर मैंने अपने घर वालों को कहा कि मुझे ये करना है, और मैं बॉम्बे आ गया। आप लोग गैस कर सकते हो कि ये 15 लाख रुपए का पैसा कहाँ से रेज हुआ? चोरी, डाका, जुआ ये 15 लाख रुपए कहाँ से आए? मुझे जॉब छोड़ने के लिए 15 लाख रुपए देने, जिससे मैं बॉम्बे में फिल्म मेकर की जिंदगी शुरू कर सकूं। ठीक है, मेरे घर पे पैसे नहीं है। ये 15 लाख रुपया रेज हुआ, करीब 25 दोस्तों ने मेरी मदद की, स्कूल और कॉलेज के। थैंक यू। स्कूल और कॉलेज के दोस्तों ने पैसे जोड़ कर मेरा करियर शुरू कराया बॉम्बे में। ओके, उस वक्त मेरी उम्र थी 24 साल, और बहुत, मुझे तो लगता है कि बहुत ग्रैटिट्यूड भरी शुरुआत मेरी जर्नी की रही। उस वक्त मेरे पापा से फ़ोन पर मेरी बात हो रही थी, जहाँ पापा ने मुझे ये एक्सप्रेस किया कि अब तुम बॉम्बे पहुँच गए हो, अब यही तुमको करना है, तो इस पर फोकस करो और इसमें सक्सेसफुल होकर दिखाओ। आपको क्या लगता है उस वक्त मैं क्या हासिल कर लेता तो पापा बोलते कि बेटा सक्सेसफुल हो गया है?
मेरे पापा का कहना था कि जब तुम बम्बई में एक घर खरीद लोगे तब तुम सक्सेसफुल हो मेरी नज़र में। और मैंने पापा को कहा था कि आपकी बात मैं समझता हूँ, मगर मेरे हिसाब से मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हूँ। तो ऑफकोर्स पापा का डेफिनेशन ऑफ सक्सेस और मेरे डेफिनेशन ऑफ सक्सेस में कुछ तो फर्क है। आप में से कोई ट्राई करेगा इस क्वेश्चन का आंसर करना कि मैं क्यों कह रहा था 24 साल की उम्र में कि मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हूँ, और वो मेरे पिताजी के डेफिनेशन ऑफ सक्सेस से अलग जो था वो क्यों था? मैं क्या देख पा रहा था जिसके कारण मुझे लग रहा था मैं सक्सेसफुल हूँ? मैडम, हाँ, या, so there's something to always lean on. Yes. Financially. yes, And because you have a vision and you are embarking on your journey. yes, So it might lead to satisfaction every day yes, because you are investing in your passion. yes, And it will eventually lead to success, which is your definition of success. Okay, thank you so much. अभी इसको एक बार मैं समराइज करता हूँ। मैम ने क्या कहा? उस वक्त मेरी ज़िंदगी में मेरे पास एक MBBS का स्टैम्प है एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से, तो मेरा जो पास्ट है उसमें एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है कि कुछ हासिल किया हुआ है। दूसरा, मेरे पास एक विजन है जो कि आई थिंक ये सौभाग्य है कि आपके पास विजन है। ये आई डोंट थिंक ये बहुत अहंकार की बात होनी चाहिए, बट ये विजन बहुत लोगों के पास नहीं होता कि आपको लाइफ में एक्चुअली करना क्या है, राइट? फिर उस विजन पर फॉलो करने का कन्विक्शन है कि हाँ मुझे यही करना है, ओके? और इसलिए हर दिन सुबह उठकर मैं वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, और इसलिए मैं अपनी नज़र में सक्सेसफुल हूँ, ठीक है? अब मैं आपको एक बार अपनी लाइफ की रियलिटी बताता हूँ जो कि इस चीज़ के साथ है। मैं एक छोटे से कमरे में रह रहा हूँ, मेरे पास एक भी फर्नीचर नहीं है, मैं ज़मीन पे सोता हूँ, मेरे पास ऑटो रिक्शा पे चढ़ने के पैसे नहीं हैं, तो मैं पैदल चलता हूँ या बस या ट्रेन पर चलता हूँ। मैं अपने घर वापस नहीं जा रहा हूँ, मैं घर जाऊँगा जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, जब घर वाले मान लेंगे। तो दुनिया की नज़र में क्या मैं सक्सेसफुल हूँ? नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है? अच्छा, उस वक्त उस उम्र में ये था भी कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा सब मान लेंगे कि मैंने जो किया सही किया। उसके करीब 6 साल के बाद एक मौका मिला जब मैं अपने भाई के साथ काम करता हूँ काफ़ी, तो हमने एक कश्मीरी फिल्म बनाई थी जिसके लिए हमें नेशनल अवार्ड मिला था 2014 में। उस वक्त मेरी उम्र 30 साल थी, और 30 साल नेशनल अवार्ड के लिए बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। उस वक्त राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, और प्रणब मुखर्जी के हाथों से दिल्ली में 2014 में नेशनल अवार्ड मिला था, ठीक है? घर गए हुए मुझे 7 साल हो गए थे। मैं घर नहीं गया था, मैं बम्बई में ही था। और उस नेशनल अवार्ड सेरेमनी में मेरे पिताजी आए और दिल्ली में उन्होंने वो सेरेमनी देखा। इनफैक्ट दूरदर्शन पर लाइव नेशनल अवार्ड दिखाते हैं, तो जब अवार्ड के लिए मैं स्टेज पर गया था तो ऑडियंस में ताली बजाते हुए मेरे पिताजी भी नज़र आए थे कैमरा में। तो बिहार में हमारे घर परिवार वाले जो दूरदर्शन पर देख रहे थे उन्होंने मुझे तो देखा ही, उन्होंने मेरे पिताजी को भी दूरदर्शन पर देखा। अगले दिन बिहार के अखबारों में मेरा नाम था, मेरे भाई का नाम था, और राष्ट्रीय पुरस्कार का मेंशन था। काफ़ी अच्छी तस्वीरें भी आई थी, दुनिया भर से फ़ोन भी आ रहे थे। 30 साल की उम्र में अगर आपको राष्ट्रपति से पुरस्कार मिल जाता है तो क्या आप सक्सेसफुल हैं या नहीं हैं? कितने लोगों को लगता है कि हाँ ये तो सक्सेसफुल होने की निशानी है? हाथ उठाइए, अच्छे से हाथ उठाइए जिससे समझ में आए कि अभी माहौल क्या है। कितने लोगों को लगता है कि ये ठीक है एक अवार्ड है बट ये सक्सेस की तो निशानी नहीं है? हाथ उठाइए। ओके, तो 2014 के अवार्ड के बाद मैं फाइनली घर गया, और जब मैं घर पहुंचा तो जो लोकल रिपोर्टर्स होते हैं वो लोग घर पर आए इंटरव्यू लेने के लिए, और इन चीज़ों से आपको ऐसा आभास होने लगता है, यू कैन स्टार्ट टू बिलीव
कि अब तो हो गया है, अब तो जीवन आसान होने वाला है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि एक कश्मीरी शॉर्ट फिल्म बनाकर नेशनल अवार्ड जीतना अपने आप में कितना भी बड़ा हो, उसके आपकी ज़िंदगी पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास अभी भी पैसा नहीं है, आपको अभी भी आपका काम दुनिया ने देखा नहीं। वो मेरी कश्मीरी शॉर्ट फिल्म आप में से किसी ने नहीं देखा है, तो आपका काम दुनिया ने देखा नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री से आपको बहुत ज़्यादा काम मिल नहीं रहा है, आपको वो स्ट्रगल आपका कंटिन्यू अभी भी हो रहा है, तो फिर ये सक्सेस है या नहीं है? ओके, हमारी दुनिया में जब आप फीचर फिल्म बना लेते हैं तब आपको फिल्म मेकर माना जाता है। जब तक आप फीचर फिल्म नहीं बनाएं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स को भी नहीं मानते। जब आप फीचर फिल्म बना लेते हैं जिसमें एक कहानी हो, जो कि 70, 80, 90 मिनट कम से कम हो, 2 घंटे की फिल्म हो, सिनेमा हॉल में आए, तब लोग कहते हैं कि हाँ आप फिल्म मेकर हो। हम एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे 2008 से, वो फिल्म शूट ही नहीं हो पा रही थी। नेशनल अवार्ड के बाद थोड़ा सा आसान हो गया उसका रास्ता, और 2017 में फाइनली हमने उस फिल्म को शूट किया। यानी नेशनल अवार्ड के 3 साल के बाद उस फिल्म को हमने शूट किया। उस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया मैंने और मेरे भाई ने, जिसके लिए हमें 1 भी रुपया नहीं मिला, 0 रुपीज टू राइट एंड डायरेक्ट, क्योंकि पहली फिल्म थी, फिल्म को बनाने का मौका देना ही बड़ी बात थी। फिल्म का बजट 3.25 करोड़ रुपए था, तो किसी ने 3.25 करोड़ रुपए डाले हैं फिल्म पर, लेकिन हमारी जेब में पैसा नहीं आया। ठीक है, फिल्म बन गई 2018 में, लेकिन रिलीज नहीं हो रही थी। 2018 आकर गया, 2019 आकर चला गया, कुछ फिल्म फेस्टिवल्स हुए, वहाँ पर फिल्म को अवार्ड मिले। हम देहरादून भी फिल्म लेकर आए थे, देहरादून में भी स्क्रीनिंग हुई थी, लेकिन फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। फिर 2020 हुआ और कोविड आ गया। कोविड के वक्त, जब कोविड आया था मार्च 2020, उस वक्त मेरी उम्र अब 36 साल हो चुकी है, 36 ईयर्स। मेरा काम बाहर नहीं आया है, मुझे नेशनल अवार्ड मिले 6 साल हो गए हैं, और दुनिया बंद हो गई है क्योंकि कोविड पैंडेमिक है। ठीक है, मेरी वाइफ डॉक्टर है, आप उनको भी सुनेंगे, वो साइकेट्रिस्ट है, लेकिन कोविड के वक्त वो कोविड पेशेंट्स देखने के लिए दिन रात ड्यूटी कर रही थी। तो रात में वो रात भर की ड्यूटी पर जाया करती थी बॉम्बे में, और पीपी सूट पहनकर काम करती थी। और मैं घर पे ये सोच रहा था कि अभी जब एक पैंडेमिक है, पूरी दुनिया पर असर, स्पेशली हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ इतना प्रेशर है पॉपुलेशन का, पॉवर्टी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, अभी मैं अपने देश, अपने समाज, अपने लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ? तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने घर में बंद हूँ और मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। आप लोगों में से जितने स्टूडेंट्स हैं, सब मेरे से उम्र में काफ़ी छोटे हैं। जब आप 36 साल के हो जाएंगे, 36 के जब हो जाएंगे, उस वक्त अगर आपको ये सोचना पड़े कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल किया, तो वो बहुत हॉरर वाली फीलिंग है कि 36 साल की उम्र में आप सोच रहे हो कि मैंने किया क्या। आपने MBBS की पढ़ाई भी की थी, मेरे केस में तो मुझे तो काम आना चाहिए था ना अभी पैंडेमिक के वक्त। तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि लोग ठीक ही कहते थे क्या शायद, कि ये जो लाइन मैंने सेलेक्ट की, ये मैंने अच्छा डिसीजन नहीं लिया। मैं 1 हफ्ता परेशान रहा, 7 दिन, और उसके बाद मैंने ट्विटर पर कैजुअली ट्वीट किया, बिना ज़्यादा एक्सपेक्ट किए, कि मैं सिनेमा पर ऑनलाइन लेक्चर्स लूँगा और उन लेक्चर्स में जो भी पैसा रेज होगा वो सारा का पैसा चैरिटी में जाएगा। और इस तरह 1 अप्रैल 2020 को मैंने अपना पहला लेक्चर किया, और 1 महीने में मैंने सिंगल हैंडेडली 10 लाख से ज़्यादा रुपए डोनेट किए। 1 महीने में 10 लाख रुपया डोनेट किया टू सेवरल कोविड चैरिटी ग्रुप्स। ओके, ऑफ कोर्स 1 अप्रैल को मुझे नहीं लगा था कि इतना हासिल हो पाएगा, लेकिन 30 अप्रैल को वो फिगर 10 लाख था। तो मेरे घर परिवार, और अब मेरी शादी भी हो गई थी, तो मेरे इन लॉज सब बहुत प्राउड थे कि ये सत्यांशु तुमने कमाल कर दिया, तुमने घर पे बैठे बैठे 10 लाख रुपया काफ़ी होता है एक इंसान अगर सिंगल हैंडेडली रेज कर सके, वो भी कोविड में जब आप घर से नहीं निकल सकते। उस वक्त मैंने बोला कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी 2nd मंथ में देखो क्या होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को शुरू करने में ज़्यादा मेहनत लगती है, उसके बाद इट कैन टेक ऑफ। मई के महीने में भी मैंने लेक्चर्स किए, और
मई के महीने में 18 लाख से ज़्यादा रुपए रेज हुए। तो 2 महीने में मैंने सिंगल हैंडेडली विद द सपोर्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड 28 लाख रुपए से ज़्यादा चैरिटी की, बिकॉज कोविड में किसी भी तरह समाज और देश के काम आना था। ठीक है, उस वक्त भी मेरे पास मेरी पर्सनल सेविंग 2-3 लाख से ज्यादा की नहीं थी। उस मोमेंट में क्या लग रहा है आपको, मैं सक्सेसफुल हूं या नहीं हूं? मेरा फिल्म नहीं बाहर आई है अभी तक, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरे पास 2 लाख रुपए से ज्यादा की सेविंग नहीं है, लेकिन 2 महीने में 28 लाख से ज्यादा मैं डोनेट कर चुका हूं बाय मोबिलाइजिंग 2000 पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ये अचीवमेंट सक्सेस का पैरामीटर है या नहीं है? कितने लोगों को लगता है कि ये 2 महीने में जो चैरिटेबल वर्क है ये अपने आप में सक्सेस का पैरामीटर है? हाथ उठाइए। लेकिन मैं बहुत छोटे घर में रह रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। ओके, ठीक है, थैंक यू। ये 2020 की बात है, आज उसको 5.5 साल हो गए उस घटना को। आज मेरे पास मेरी फिल्म भी बाहर आई, उसके बाद मैंने और काम भी किया है। आज नेटफ्लिक्स पर मेरा शो है ब्लैक वारंट, जो दुनिया भर में 180 देशों में देखा जा सकता है। मैं दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर पढ़ाता हूँ और मैं वहाँ के राइटर्स को हेल्प करता हूँ। एज ए टीचर वो जो 2 महीना मैंने चैरिटी की, उसके कारण मेरा नाम इतना हो गया कि मैं आज भी उसके रिवॉर्ड मुझे मिल रहे हैं। मैं लेक्चर्स किसी भी शहर में करता हूँ, मैं अच्छा कमा लेता हूँ एज ए टीचर। मुझे पिछले महीने दिसंबर में मुझे 2 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। तो मेरे घर पर 2 फिल्म फेयर ट्रॉफी रखी हुई है, जिसको देखकर लगता है कि ये तो वो इमेज है जो हम बचपन से वाइल ग्रोइंग अप देखा करते थे लोगों के हाथ में। आज वो घर में फर्नीचर पर कोने में रखी हुई हैं दोनों ट्रॉफीज। ओके, ठीक है। मेरे मम्मी पापा और मेरे घर वाले काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, काफ़ी प्राउड फील करते हैं। मेरे दोस्त काफ़ी खुश हैं। मेरे कॉलेज में, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में मुझे 2 वीक पहले इनवाइट किया गया था। ओके, लेकिन मेरा अगला चेक कहाँ से आएगा मुझे नहीं पता है। मैं इस साल कितने पैसे कमाऊंगा मुझे नहीं पता है। मेरा अगला कॉन्ट्रैक्ट क्या है मुझे नहीं पता है। वो अनसर्टेनिटी मेरी लाइफ में आज भी है। मेरे पास आज भी बंबई में घर नहीं है, तो मेरे पिताजी के डेफिनेशन के हिसाब से तो मैं सक्सेसफुल नहीं हूं। मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, और बंबई के जिस घर में वो लोग रेंट देते हैं वो घर भी बहुत साधारण ही है, छोटा सा ही घर है। क्या लग रहा है आप लोगों को, मैं सक्सेसफुल हूं या नहीं हूं? और अगर ये सक्सेस है तो आज से 12 साल पहले जो नेशनल अवार्ड मिला था वो सक्सेस, कई लोगों ने हाथ उठाया था, तो वो नेशनल अवार्ड के वक्त ही हाथ उठ गया था आप लोगों का कि हाँ मैं सक्सेसफुल था। तो ये 12 साल जो हुआ वो क्या हुआ, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट एक्चुअली सक्सेस क्या है उसको समझना बड़ा मुश्किल है। क्या है सक्सेस? सक्सेस को हम ऐसे चेज कर रहे हैं जैसे सक्सेस एक टैंजिबल, नजर आने वाली परमानेंट स्टेट है, जहां पहुंच जाएंगे तो हम फिर उसी में रह जाएंगे। जैसे कि शादी होने जैसा है, शादी हो गई तो अब शादीशुदा हैं, सक्सेस मिल गया तो अब आप सक्सेसफुल हैं। पूरी दुनिया चेज करी अपने अपने तरीके से, लेकिन किसी को एक्चुअली पता नहीं है कि सक्सेस क्या है। सक्सेस एक्चुअली क्या है वो एक वेग सा कॉन्सेप्ट है। सक्सेस इल्यूसिव है। इल्यूसिव का मतलब पता है आप लोगों को? वो छलिया है, वो किसी को समझ में भी नहीं आता। सक्सेस एक अच्छी जिंदगी जीने का बहाना है। सक्सेस को चेज करना एक अच्छी जिंदगी जीने का बहाना है। असली काम जिंदगी है। समझ लो आप ऐसे समझो कि आप एक ट्रेन पर बैठे हो, वो ट्रेन बहुत अच्छी ट्रेन है, उस ट्रेन पर सफर करने में आपको बहुत मजा आ रहा है। आपको कहा गया है कि वो ट्रेन आपको सक्सेस नाम के स्टेशन पर लेकर जाएगी, लेकिन वो स्टेशन कैसा है, कहां है, कब आएगा आपको नहीं पता, लेकिन वो ट्रेन पे बैठने में आपको मजा आ रहा है। ऐसा ही कुछ है सक्सेस। सक्सेस इज एन इल्यूसिव डेस्टिनेशन जो कभी आपके हाथ में आकर टिकने वाला नहीं है। आपकी जिंदगी में सक्सेस का इंतजार या फेलियर या सेटबैक ज्यादा परमानेंट स्टेट है।
सक्सेस अपने आप में कोई परमानेंट स्टेट नहीं है। सक्सेस का इंतजार, सक्सेस की शिद्दत से परस्यूट, सक्सेस को चेज करने में निराशा, हताशा, सेटबैक, फेलियर, ये एक्चुअली जिंदगी का कांस्टेंट स्टेट है। आप लोगों को बचपन में कहा गया होगा क्लास 10 का एग्जाम दे लो अच्छे से तो फिर जिंदगी ठीक हो जाएगी, फिर अच्छे कॉलेज में चले जाओ तो जिंदगी ठीक हो जाएगी, नौकरी कर लो तो जिंदगी ठीक हो जाएगी, शादीशुदा होकर सेटल हो जाओ तो जिंदगी ठीक हो जाएगी। ये सब झूठ है। जिंदगी ठीक अभी भी है, जिंदगी ठीक 2 साल बाद भी रह सकती है, जिंदगी ये सब होने के बाद भी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि एक्चुअली वो कोई परमानेंट स्टेट नहीं है। इसका मुझे एक बहुत बड़ा एहसास हुआ जब 2021 में मुझे बहुत बुरा कोविड हुआ। मुझे इतना बुरा कोविड हुआ कि मैं 45 डेज ऑक्सीजन पर था और मैं 2 महीने बेड पर था। 6 महीने तक कोविड का असर मेरे शरीर पे था। मेरे लंग्स, मेरा हार्ट, मेरा स्किन, मेरे बाकी बॉडी के ऑर्गन्स, सब पर कोविड का असर हुआ था। और वो 45 डेज जब मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, उसमें 7 दिन ऐसे थे कि मैं बिस्तर से नहीं उठ पा रहा था। और सिंस मैंने मेडिसिन की पढ़ाई की है, मुझे नज़र आ रहा था कि मेरा कंडीशन कितनी तेज़ी से ख़राब हो रहा है, तो डर ज़्यादा लग रहा था। और हॉस्पिटल में जब 12 दिन में हॉस्पिटल में भी था, जब मेरा कंडीशन तेज़ी से ख़राब हो रहा था, मुझे एक वक्त के लिए तो लगा था कि बस यही है अब। उस वक्त मैं 37 साल का था, मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी 37 साल की होने वाली है और फिर मैं चला जाऊंगा। जब मेरी हालत ठीक होने लगी, कोविड में आपको पता है सब बहुत ड्रामेटिक था। 7 दिन के अंदर किसी की हालत बहुत ख़राब हो सकती थी और 8वें 9वें दिन से उसकी हालत फिर ठीक भी होने लग जाती थी। तो जब मेरी हालत ठीक होने लगी और मुझे लगा कि अब 2-3 दिन में मुझे घर भेज देंगे और सिंस माय वाइफ, माय पार्टनर इज ऑल्सो अ डॉक्टर, तो घर पे इलाज हो सकेगा, मुझे हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने एक पल के लिए सोचा कि देखो ये लाइफ का एंड तो पता नहीं, शायद नहीं है, लेकिन ये इंटरवल ज़रूर है। 37 मतलब अगर मान लो आप अपनी ज़िंदगी 75 साल मान लो, 80 साल भी मान लो, तो 37 कैन बी द इंटरवल, द मिड पॉइंट ऑफ योर लाइफ। और उस वक्त मैंने बहुत करीबी से उस डर को महसूस किया कि जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और जब आपके हाथ से सब कुछ चला जाता है, उस वक्त क्या हो सकता है। तो मैंने एक पेपर पेन लेकर अपने ज़िंदगी को समझने के लिए एक एक्सरसाइज किया। मैं वो एक्सरसाइज आपसे शेयर करना चाहता हूँ अभी, क्योंकि उस एक्सरसाइज ने मुझे जो दिया है वो अपने आप में तो स्पेशल है, मगर वो सक्सेस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत बहुत स्पेशल है। एक एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, आप लोग या तो अभी कर सकते हो मेंटली या पेपर पेन पे, या आप घर जाकर कर सकते हो। और मैं वो हर साल एक बार करता हूँ वो एक्सरसाइज। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। मैं अपने एग्जाम्पल से बताऊंगा, फिर आप देखो आप उसको अपनी लाइफ में कैसे अडैप्ट कर सकते। मैं सत्यांशु, मैं एक इंसान हूँ और मेरी एक ज़िंदगी है और उसमें एक सक्सेस या एक गुड लाइफ का एक परस्यूट है, एक संघर्ष है, एक लक्ष्य है। लेकिन एक्चुअली चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है। मैं सत्यांशु एक इंसान हूँ, लेकिन मेरे अंदर 10 अलग अलग डायमेंशन हैं। आपकी एक लाइफ है, मगर उस लाइफ के 10 अलग अलग डायमेंशन हैं। उसी तरह सक्सेस एक चीज नहीं है, हर डिमेंशन का बेस्ट पॉसिबल मैनिफेस्टेशन है। इसको ऐसे समझो, मेरा फिजिकल हेल्थ एक डायमेंशन है, मेरा मेंटल हेल्थ या मेरा मेंटल इंटेलिजेंस या वेलबींग दूसरा डायमेंशन है, मेरा स्पिरिचुअल हेल्थ, जिस आप स्पिरिचुअलिटी को किसी भी नजर से देख लो, बट जो आपका स्पिरिचुअल हेल्थ है, आपके सोल का हेल्थ है, आपकी आत्मा का जो हेल्थ है, वो एक डायमेंशन है, राइट। अब एज अ प्रोफेशनल आपका कोई डायमेंशन होगा। मान लो आप क्रिकेटर हो, तो क्रिकेटर आपका प्रोफेशन है, क्रिकेट आपका प्रोफेशन है, लेकिन उसके ऑलरेडी 2 डायमेंशन है। एक, आप कितना अच्छा क्रिकेट खेलते हो, और दूसरा, आप वो करके कितने पैसे कमाते हो। दोनों 2 है, क्योंकि आप हो सकता है साधारण प्लेयर हो लेकिन आप पैसे कमा ले रहे हो किसी तरीके से, या आप बहुत अच्छे प्लेयर हो लेकिन आप पैसा बहुत अच्छा नहीं कमा पा रहे। दोनों 2 अलग डायमेंशन है। तो आप अपने प्रोफेशन में कितने स्किलफुल हो, आर यू अ मास्टर ऑफ योर प्रोफेशन, वो एक डायमेंशन है।
उस प्रोफेशन से आप कितने पैसे कमाते हो और आपके पास मटेरियल वेल्थ कितना है, वो अलग डायमेंशन है। ठीक है, आपकी जिंदगी में कितनी अच्छी यादें आप बना पाते हो अपने लिए, मेमोरीज, वो एक डायमेंशन है। आप अपनी जिंदगी में कितने रिलेशनशिप बनाकर उनको संभाल कर रख पाते हो, वो एक अलग डायमेंशन है। राइट, ऑलरेडी हम आप ही को कितने हिस्सों में तोड़ चुके हैं, देख रहे हो कितने हिस्सों में तोड़ दिया अभी आपको, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अगर आप अपने प्रोफेशन को लेकर सीरियस हो तो आप पूरी जिंदगी एक स्टूडेंट हो, तो एजुकेशन का परस्यूट, स्टूडेंट होना, वो एक डायमेंशन है। और अगर आप अपने प्रोफेशन में एक सीनियर हो जो दूसरों को हेल्प करते हो, अपने जूनियर्स को, तो आप एक टीचर हो। अब आपकी जिंदगी में टीचिंग का भी एक डायमेंशन है। इसके बाद आपकी जिंदगी में कुछ शौक होंगे, कुछ हॉबीज होंगी, कुछ आपके, जैसे मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद है, मैं सिनेफाइल कहते हैं, फिल्म बफ, मूवी बफ। मेरा फिल्म बफ होना एक डायमेंशन है। अगर मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, फिल्में बना रहा हूँ और उस साल में एक मूवी भी नहीं देख सका, तो मेरा वो वाला डायमेंशन कमजोर रह गया ना। अगर मैंने फिल्में नहीं देखी तो फिल्म देखने का जो सुख है वो तो कहीं छूट गया मेरा, वो भी एक डायमेंशन है। आप अगर मटेरियल सुख भोगना चाहते हो, आप गाड़ी, बंगला, अच्छे कपड़े खरीदना चाहते हो, वो भी आपकी जिंदगी का डिमेंशन है। अब इतनी चीजें अगर आपके अंदर हैं तो हम उसको ये कहना कि आप एक हो, आपकी जिंदगी एक है और सक्सेस एक है, ये तो बहुत अनफेयर है। सो द एक्सरसाइज इज दिस, आप अपने अंदर झांक कर देखो कि आपकी लाइफ को आप कैसे अलग अलग हिस्सों में, पैरेलल हिस्सों में तोड़ सकते हो। बॉडी, माइंड, सोल, material being, skill, professional skill, being a student, being a teacher, all your hobbies, all your memories, all your relationships. रिलेशनशिप से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे हॉस्पिटल में बैठे बैठे ध्यान आया कि मैं अपने काम को लेकर इतना ज़्यादा कमिटेड हूँ कि मेरी लाइफ में फैमिली और फ्रेंड्स को मैं कम इंपॉर्टेंस देता हूँ, लेकिन वो भी मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। राइट, सो आपका आपके फैमिली, लव्ड वंस और फ्रेंड्स के साथ जो रिश्ता है वो एक डिमेंशन है। आपका आपके समाज के साथ जो रिश्ता है वो एक डिमेंशन है, वहाँ पर आपकी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका आपके देश के साथ जो रिश्ता है वो एक डिमेंशन है। आप दुनिया के नज़र से भी देख सकते हो कि एज अ ग्लोबल सिटीजन आपकी एक अहमियत है इस दुनिया में। राइट, इसमें से जिस भी चीज़ से आप रिलेट कर पा रहे हो, आप अपनी कम्युनिटी से रिलेट कर पा रहे हो, आप अपनी सोसाइटी से रिलेट कर पा रहे हो, आप अपने शहर से रिलेट कर पा रहे हो, अपने स्टेट से रिलेट कर पा रहे हो, अपने राष्ट्र से रिलेट कर पा रहे हो, जहाँ भी आप अपने आप को एज अ रिस्पॉन्सिबल सोशल बीइंग देखते हो, वो आपका एक हिस्सा है, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। इन सारे डिमेंशंस में ब्रेक करके अपने आप को देखना पड़ता है कि अभी आप उसमें कहाँ हो। जैसे आप में से ज़्यादातर लोग यंग हैं, तो फिजिकल हेल्थ का जो डिमेंशन है मेरे से बेहतर होगा आप में से ज़्यादातर लोगों का। राइट, अब मैं अपने काम में आगे बढ़ गया हूँ, लेकिन साथ में उम्र भी हो रही है, तो मेरा फिजिकल हेल्थ का डिमेंशन कमज़ोर हो रहा है आपके कंपैरिजन में। राइट, लेकिन अगर मैं उसको एक क्लियरली एक रास्ता मान कर चलूँ तो मुझे उस पर काम करना पड़ेगा अपने फिजिकल हेल्थ के डिमेंशन पर। राइट, सो इसको मेरा एक फ्रेंड है, वो कहता है लाइफ ऑडिट। ऑडिट पता है आप लोगों को क्या होता है? कोई भी कंपनी जो होती है साल के अंत में ऑडिटर्स बुलाती है जो उस कंपनी के अकाउंट्स को चेक करती है कि कहाँ कितना खर्चा हो रहा है और फाइनेंशियल हेल्थ क्या है कंपनी का। तो लाइफ ऑडिट ये कॉन्सेप्ट है जहां पर आप अपनी जिंदगी के सारे डिमेंशंस को देखते हो कि आप कौन से हिस्से में कैसा ऑपरेट कर रहे हो। जनरली जब मैं किसी वेकेशन से वापस घर जा रहा हूँ या मैं फ्लाइट पर हूँ, तब मैं ये एक्सरसाइज करता हूँ, बिकॉज एक नया फेज शुरू होने वाला है। उस वक्त अगर मैंने अपने लाइफ को ब्रेक करके अपने सारे डिमेंशंस को देखा कि मेरी बॉडी कैसे वर्क कर रही है, मेरा माइंड कैसा वर्क कर रहा है, मैं सोलफुली क्या फील कर रहा हूँ, मेरे लव्ड वंस के साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा है, मेरा फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, मेरी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट कैसी हैं, मैं सोसाइटी को कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, मैं एज अ टीचर क्या कर पा रहा हूँ, मैं एज अ स्टूडेंट क्या कर पा रहा हूँ। अगर मैं इसको ब्रेक ना करूँ तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये समझना कि मैं आज की डेट में सक्सेसफुल हूँ या नहीं हूँ। ओके, आई थिंक एट बेस्ट व्हाट वी कैन होप इज वी कैन होप टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। आप अपना बेस्ट वर्जन हो सकते हो और
दूसरों से कंपेयर करने के बजाय कि उसके पास कितना घर है और कितनी गाड़ियां हैं और उसके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, दूसरों से कंपेयर करने के बजाय अगर आप अपने आप को इन सारे अलग अलग डिमेंशंस में देख सको कि मैं कहाँ ऑपरेट कर रहा हूँ, पिछले साल मैं कहाँ था और आज मैं बेहतर हूँ कि नहीं, दैट इज अ बेटर मार्कर ऑफ द आइडिया ऑफ सक्सेस। ठीक है दोस्तों, अब बस एक छोटी सी कहानी से मैं एंड करूंगा इस कॉन्वर्सेशन को। मैं जब 26-27 साल का था तो बॉम्बे में मुझे किसी ने कह दिया, पता नहीं कौन था वो बुरा इंसान, someone told me that Satyashu, you are not ambitious enough, आप में एम्बिशन कम है। मैं 26 साल का था, मैं बड़ा परेशान हो गया इस बात से कि ये क्या कह रहे हैं कि आप में एम्बिशन कम है। तो मैं कई सीनियर लोगों को पकड़ता था और उनसे पूछता था कि सर क्या आपको लगता है कि मेरे में एम्बिशन कम है, और मुझे कोई भी इसका सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पा रहा था कि क्या आप में एम्बिशन कम है। फिर एक मेरा दोस्त है, मेरा मैनेजर है, मेरे मतलब हम लोग टैलेंट मैनेजर्स का एक कॉन्सेप्ट होता है फिल्म इंडस्ट्री में। उन्होंने मुझे कहा कि सत्यांशु, हर दिन सुबह जग कर तुम ये जाने में तय करते हो, यू डिसाइड कि तुमको ये दिन, यू हैव टू बी हैप्पी दिस डे, आज मुझे खुश रहना है, और तुम जाने में ये तय करते हो कि मुझे लोगों के बारे में अच्छा सोचना है। दिस इज एम्बिशियस इनफ। हर दिन आप खुश रहना चाहते हो और हर दिन आप लोगों के बारे में अच्छा सोचना चाहते हो, ये बहुत बड़ा एम्बिशन है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हर दिन खुश रह पाना या उसकी मेहनत करना और लोगों के बारे में भला सोचना, ये छोटी बातें नहीं है। और अगर इतना तुम कर पा रहे हो तो तुम्हारे में बहुत एम्बिशन है। उस दिन के बाद से आज इतने साल बीत गए हैं, मैंने कभी भी इस चीज़ को क्वेश्चन नहीं किया कि मेरे में एम्बिशन कितना है। आज भी सुबह उठता हूँ तो इट इज़ अ न्यू डे विच इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट मेमोरीज, टू स्पेंड टाइम विद लव्ड वंस, to love cinema in my own way, to watch a good film, to read a book, to teach, to learn. In this process, make something, write or direct or make a piece of cinema without hopefully compromising on physical health, mental health, without compromising on my relationships. And if I'm kind of balancing all of this, I'm already living a good life. And that is why chasing an idea of success does not interest me. Because ultimately success is an elusive, एक छलिया है जो आपको बस इतना कर सकता है कि उसके परस्यूट में आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सको। So this is what I wanted to share with you guys this morning. अगर आप लोगों को सवाल हैं तो प्लीज़ मेरे से पूछिए। आप अपनी ज़िंदगी के कॉन्टेक्स्ट में, अपने ड्रीम्स के कॉन्टेक्स्ट में, अपने पैशंस के कॉन्टेक्स्ट में, आपके आइडिया ऑफ सक्सेस एंड फेलियर के कॉन्टेक्स्ट में, आपके गुड लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में, आस्क मी एनीथिंग एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई, इंक्लूडिंग ऑल द फैकल्टी मेंबर्स सिटिंग हियर। प्लीज़ लेट मी नो इफ आई कैन आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चंस। दैट्स इट, थैंक यू।